Good morning, children. Myself, Karunesh Singh Bhadoria. Children, in previous video, I have explained current electricity chapter, current density, and some other topics like drift velocity, time of relaxation. All these things we have explained. Today, I am taking very important topic, Ohm's law. Yes, it is very important topic for board examinations. This topic you have already studied in class 10th also. So, let us see what is Ohm's law. So, today's my topic is Ohm's law. What is Ohm's law? In 1828, a famous scientist, Mr. Ohm, gave a relation between potential difference and flowing current in a circuit. In any conductor, current I is flowing. This current and potential difference across the conductor, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है मिस्टर ओम ने दिया था, वो रिलेशन, वो स्टेटमेंट ओम्स लॉ कहलाता है. तो स्टेटमेंट क्या है? इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, इन दैट केस फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम मीन्स देयर इज नो चेंज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर, देयर इज नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, there is no change material of the conductor, there is no change room temperature etc. मतलब इस तरह की कोई चेंजेस ना हो, फिजिकल चेंजेस अगर नहीं है, इन दैट केस ओम्स ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट. उससे जो करंट फ्लो होती है और उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है, उनके बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल conditions remains same, then potential difference across the ends of conductor is directly proportional to flowing current. This is the statement. If physical condition remains same, there is no change in physical condition of the conductor, in that case the potential difference across the end of the conductor is directly proportional to the flowing current. That is, V is directly proportional to I. V is potential difference, I current, both are directly related. It means if we take any change in current, we will get similarly change in potential difference also. This is V equals to R I, or V upon I equals to R. This is Ohm's law, where
R is a constant is called, R is a constant is called resistance of conductor. ओके, R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, जो कांस्टेंट रहेगा, V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जैसे चेंज आप V में I में करेंगे, V आपको चेंज मिलेगा। I की वैल्यू करंट इंक्रीज कराएंगे, पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। I डिक्रीज कराएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। दोनों में सिमिलर चेंजेस होंगे। उस केस में V एंड I, द रेशियो ऑफ V अपॉन I, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये ओम्स लॉ है यहाँ पे, राइट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो देखिए इसका ग्राफ, this is V and this is current I. As we know that V is directly proportional to I, it means this is V, this is I. Suppose if we take the potential difference 5 volt, then we will get current 2 ampere. अगर इस पोटेंशियल को मैं इंक्रीज करके 10 वोल्ट कर देता हूँ तो करंट भी इंक्रीज होगी, सपोज इट इज 4 एम्पियर। इफ दिस इज 15 वोल्ट, दिस इज 6 एम्पियर। इन दिस केस what is the value of V upon I? V upon I, this will be 5 by 2, this will be 10 by 4, this is also equals to 5 by 2, here 15 by 6, 3 5 is 15, 3 2 ja, means the ratio of potential difference and current, this ratio will be 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2. Here if ratio between V and I is constant, then graph will be a straight line, V upon I equals to R. This is the graph. Suppose if we take 2 points on this graph, this point and this point, so this is delta V, this is current. तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ कहिए या R, ग्राफिक कह दीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ, ये आपको क्या देगा? स्लोप मीन्स tan थीटा, I upon V, I upon डेल्टा V, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस शो करेगा। स्लोप यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ एक 12th में एक्सपेरिमेंट भी है ओम्स लॉ का, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जो है किसी कंडक्टर का, किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो कंडक्टर, जो वायर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनमें ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। ओमिक कंडक्टर्स शोज ग्राफ ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे उनमें स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे V अपॉन I इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, V अपॉन I। तो कैन बी डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑल्सो हियर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? R, V अपॉन I, यानी द रेशियो ऑफ V एंड I, द रेशियो ऑफ potential difference and current. This ratio is called resistance, but this ratio is constant only in ohmic conductor. Ohmic conductor means the conductor which follow Ohm's law. जो Ohm's law को फॉलो करेंगे वहाँ पे ही ये कांस्टेंट आएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में ये रेशियो कांस्टेंट आए ये कोई गारंटी नहीं है, वहाँ कांस्टेंट आना ज़रूरी नहीं है। वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ सकती है, तेज़ी से बढ़ सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ओमिक कंडक्टर में ही ये रेशियो कांस्टेंट आएगा।
तो V अपॉन आई इक्वल्स टू आर कॉन्स्टेंट वैल्यू सिर्फ ओमिक कंडक्टर में ही मिलेगी। तो रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें कि इट इज़ द रेशियो ऑफ V एंड I, ये जो है ओमिक कंडक्टर में तो ठीक होगा, अनओमिक कंडक्टर के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस की एक दूसरी डेफिनेशन हम अभी देखेंगे। यहाँ ओम्स लॉ में V और I के रेशियो से आपने ग्राफ देख लिया। सो दिस इज द ओम्स लॉ। नाउ चिल्ड्रन, डिपेंडेंस ऑफ, ये चलो डेफिनेशन ले लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आर। यहाँ अभी आपने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है V और I के रेशियो को कहते हैं, द रेशियो ऑफ V एंड I, लेकिन ये ओमिक कंडक्टर में है। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी of molecules, it is the property of molecules of a substance which oppose the flow of current, or we can say flow of charge, is called resistance, and denoted by R. Its unit is ओम, और ये उसका सिंबल होता है। तो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, सभी कंडक्टर्स के लिए ये वैलिड होगी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। करंट या चार्ज के फ्लो का जो अपोज करे, जो प्रोटेक्ट करे किसी वायर के अंदर से, ये जो अपोजिशन होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, ऑफ दैट कंडक्टर, जो फ्लो का अपोज करता है। एंड दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, इट्स यूनिट इज ओम। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस के बारे में, इसे एक बार नोट डाउन करिए। देन कर लिया नोट? ओके। नाउ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हम अब उनको देखने जा रहे हैं। द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस factors on which resistance depends। ओके, वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देयर आर 4 फैक्टर्स। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स on the length of conductor। अब कैसे डिपेंड करेगा?
R is directly proportional to L. Number 1, directly proportional to length होता है. If we increase the length of conductor, resistance also increases. If we decrease the length of conductor, resistance decreases. Suppose ये conductor है, its length is L, resistance is R. If we decrease, this is suppose L1, this is L2, resistance R1, R2. L1 is greater than L2, तो R1 is also greater than R2. डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इफ लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज करेगा. इफ वी विल डिक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेज. सो दिस इज द फर्स्ट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. नाउ सेकेंड थिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया. सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. कैसे करेगा? एट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया R is inversely proportional to cross section area A. It is inversely proportional to cross sectional area, means inversely proportional. This is the cross section area, this is a conductor and this is the cross section area. If we increase this cross section area, then its resistance will decrease, and if we decrease the cross section area, its resistance will increase. इन्वर्सली रिलेटेड होता है. एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो सेकेंड चीज़ डिक्रीज हो जाएगी. कैसे हम इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे? सपोज दिस इज वायर, इफ वी स्ट्रेच दिस वायर, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा, पतला होगा, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाएगी. इफ वी कंप्रेस दिस वायर, लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम होगी, थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी इंक्रीज करेगा. तो क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है. R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और यहाँ पे लेंथ में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तीसरा होता है डिपेंडेंस ऑफ मटेरियल. यस, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल. वायर या कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है? क्या वो आयरन का बना हुआ है, या सिल्वर का बना हुआ है, या गोल्ड का है? हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक. एंड फोर्थ थिंग, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है देन रेजिस्टेंस विल अफेक्टेड, डिक्रीज करेगा देन इफेक्टेड, मीन्स टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे पड़ता है. तो यहाँ पे 4 फैक्टर मैंने आपको बताए जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं. फर्स्ट फैक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज. इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एंड सेकेंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया. If we increase the cross section area of the wire, resistance will decrease. If we decrease the cross section area of the wire, resistance will increase. Means it is inversely proportional. उल्टा related होता है. Okay. And third is material of the conductor, material of the substance, and fourth is temperature. So ये 4 things हैं जो resistance पर अपना effect डालते हैं. Now, children, this is relation number 2. Okay, this is also in LHS, in both equation LHS is R. So on combine these two equation from equation number 1 and 2, R is directly proportional
टू L बाय A। देखिए L डायरेक्टली है, सो अभी R इज प्रोपोर्शनल टू L, एरिया इन्वर्सली है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। सो ऑन कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब प्रोपोर्शनलिटी अगर इसमें से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इज रो, दिस इज रो, L बाय A, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये यहाँ पे रिलेशन आपको मिल गया। व्हाट इज रो? रो जो है, रो this is a constant, is called resistivity of the conductor, resistivity of the conductor, resistivity of the conductor, rho is the resistivity of the conductor. Now if we define the resistivity of the conductor, तो देखिए R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। सो रो इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। ओके, द यूनिट ऑफ R इज ओम, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, 1 मीटर, मीटर कैंसिल, सो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, if we take a small condition here, R equals to rho L by A. If L equals to 1, A equals to 1, suppose it is in meter, this is in meter square. If we take unit length and unit cross section area, then R equals to rho, then R equals to rho, means resistivity of the conductor is defined as the resistance of conductor. If we take this condition in a unit length conductor, if cross sectional area is also in unit, then the resistance of that conductor will be the resistivity of that conductor, resistance and resistivity। तो resistivity क्या है? यूनिट लेंथ कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यूनिट है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टिविटी। सो वी कैन राइट हियर द रेजिस्टिविटी ऑफ a conductor the resistance of a conductor, resistance of a conductor having unit length and unit cross section area, the resistance of a conductor having unit length and unit cross section area is called resistivity of that conductor. Okay, resistivity of that conductor, this is the
definition of resistivity. Clear? Here we explain resistivity and resistance. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. ये क्लियर हो गया ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में ही रेजिस्टेंस आएगा. रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से हमने डिफाइन करने को देखा था. एक तो V अपॉन आई का रेशियो लिया था. V अपॉन आई, द रेशियो ऑफ V अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, बट दैट रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ओनली ऑन इन ओमिक कंडक्टर. ठीक है, अनओमिक या नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ये पॉसिबल नहीं होगा. सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, इट इज द property of molecules of a substance, property of molecule of a substance which oppose or which protect the flow of charge, that is resistance. The unit of resistance क्या है? ओम. लिखते कैसे ओम को? This is symbol of ओम, right? बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखो. ओम. ओके, तो ये ओम्स लॉ हो गया. ग्राफ हमने देखा था ओम्स लॉ में कैसा बना था, स्टेट V और I के बीच में ग्राफ. इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है 12th में. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ 12th क्लास ओम्स लॉ की है. इस ओम्स लॉ में एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जो है वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ जो है वेरीफाई है या नहीं, राइट. तो इसके बाद में मैंने देखा कि रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स. तो देयर आर 4 फैक्टर्स. नंबर 1 वाज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये अभी हमने करके देखा था. एंड सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया. रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, राइट. लेंथ पे देख लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. थर्ड इज मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस. मटेरियल किसका लेते हैं आप? आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सभी के रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं. सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस. एंड फोर्थ इज टेम्परेचर. यस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर भी इफेक्ट. टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है. टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस विल बी चेंज्ड. ओके, एंड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिफाइंड हियर. रो इज द रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी व्हेन द लेंथ ऑफ ए वायर इज यूनिटी एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो यूनिटी. इन दैट केस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर विल बी यूनिटी. ओके, चलिए इसके बाद कंडक्टेंस. छोटे टॉपिक हैं कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस G. Actually conductance G is inversely proportional to resistance. It is sufficient to explain conductance. Conductance, what is conductance? It is inversely proportional to resistance. If we talk about its unit of resistance, conductance, unit of conductance. This is 1 upon ohm. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम. सो 1 upon ohm and 1 upon ohm is written as mho. This is unit of conductance. Okay. Now second, conductivity. What is the conductivity? Conductivity symbol is sigma. Sigma is reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity is called conductivity. Then unit of conductivity
1 upon unit of resistivity is ohm meter. Ohm meter. So this will be μ meter inverse. This is the unit of conductivity. नोट डाउन कीजिए, पहुँचिए ना. Now children, what is the effect of temperature on resistance? Now this topic I am taking. Effect of temperature on resistance. ओके, इसको देख लेते हैं. सबसे पहले कंडक्टर की बात करेंगे. कंडक्टर में चिल्ड्रन दो रिलेशन आपने देखे थे. R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, नंबर 1. एक और रिलेशन था R इक्वल्स टू ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टॉ. ये कल देखा था रिलेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, दोनों में इन LHS दिस इज द वैल्यू ऑफ R, कंबाइन करेंगे तो रो L अपॉन A इक्वल्स टू ml बाय n e स्क्वायर a इंटू टॉ. L A कैंसिल, सो रो इक्वल्स टू m अपॉन n e square tau. So we can write here rho is inversely proportional to 1 upon tau. Resistivity is inversely proportional to time of relaxation. Tau is time of relaxation. कल आपने ये डेरिवेशन देखा था. Rho is the resistivity. तो इन दोनों में inversely proportionality का साइन है. Now if we talk about conductor, suppose it is a conductor. किसी कंडक्टर में अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टॉर्क डिक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी. अब देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देन वाइब्रेशन इंक्रीजेज, वाइब्रेशन विल इंक्रीज, वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, कोलिजन्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. तो आप इसको यहाँ देखिए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन टॉ डिक्रीजेज, और टॉ अगर डिक्रीज करेगा देन रेजिस्टिविटी इंक्रीज. So the graph between R or resistivity with temperature, क्या रिलेशन हो जाएगा इसमें? इंक्रीजिंग ग्राफ. टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज. सो ग्राफ इज दिस इज द ग्राफ. ओके, नाउ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम ये हो सकते हैं. यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, जब है ना सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दे आर इन रेस्ट. व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन दे आर इन वाइब्रेशन मोशन, और वाइब्रेशन मोशन में होंगे तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे. चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. सो रेजिस्टेंस R is decreases
decreases when temperature increase. और अगर इसके ग्राफ की बात करें, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज R और रेजिस्टिविटी, इट्स ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ. और थर्ड लास्ट टॉपिक, इफ वी टॉक अबाउट एलॉय. एलॉयज़ की अगर बात करें, एलॉयज़ में जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेन है, ये जो वायर हैं जो मीटर ब्रिज में यूज़ में होते हैं लेते हैं, इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज में काम में लेते हैं. नो इफेक्ट ऑन, इसमें आप लिख सकते हैं कि हम कौन कौन से मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन, नो इफेक्ट ऑन सच alloy. Okay, so this is all about Ohm's law. Okay children, thank you.